Good morning students. Today we are going to start chapter 5 advertising. मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसे कि तुम लोग को मालूम है कि विज्ञापन वगैरह जो आते हैं टीवी में दिखाई जाते हैं, मोबाइल वगैरह में हम लोग विज्ञापन देखते हैं, उसके बारे में। फिर था कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, advertising and the media, television and radio, celebrity advertising, magazines and newspapers, internet advertising. अब today we will discuss these topics. First है billboards, trade shows and events. Second topic social advertising. Third topic social advertising and environment. Fourth socio-cultural aspects. एंड फिफ्थ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन मेजर्स। तो बिलबोर्ड्स, ट्रेड शोज एंड इवेंट्स। बिलबोर्ड, ट्रेड शोज एंड इवेंट्स क्या होते हैं? आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज आल्सो वेरी पॉपुलर form of advertising which makes use of several tools and techniques to attract the customers outdoors. The most common example of outdoor advertising are billboards, queue and also several events. The trade shows organized by the company. The billboard advertising is very popular. However, it has to be really teased and catchy in order to grab the attention of the passengers by organizing several events of sponsoring them makes for an excellent advertising opportunity. The company can organize trade fairs on event exhibitions for advertising their products. If not this, the company can organize several events. Billboards होते क्या हैं? आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है? आउटडोर एडवर्टाइजिंग एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। आउटडोर मतलब जो कि बाहर एडवर्टाइजिंग किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं बिलबोर्ड्स और बहुत सारे इवेंट्स, ट्रेड शोज़ होते हैं जो कंपनीज द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग बहुत पॉपुलर है। डिजिटल जो एडवर्टाइजिंग का एक नया मेथड है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसमें क्या होता है? टीवीएस स्ट्रेटेजिक जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं डिस्प्ले करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग जो एक सामाजिक विज्ञापन होता है उसके बारे में है। द सेम एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग, द सेम एडवर्टाइजिंग techniques are also used to inform, educate and motivate the public about issues such as HIV, AIDS, political ideology, energy, conservation, religious recruitment and deforestation. It is a powerful educational tool capable of reaching and motivating large audience. Social advertising applies marketing and advertising principles to promote health and social issues and bring about positive behavior change. Social advertising influences people's opinions or behavior through initiative for social responsibilities. It changes people's everyday lives. It targets audience for social consequences. सोशल एडवर्टाइजिंग में लोगों को बहुत सारे इश्यूज में डेप्थ ऑफ नॉलेज दी है। आज एयर क्वालिटी और क्लाइमेट चेंज की जागरूकता पब्लिक में बढ़ गई है। लोगों को जागरूक करना, उन्हें मोबिलाइज करना, यह दो अलग अलग काम है। सोशल एडवर्टाइजिंग से लोगों में न्यू एटीट्यूड डेवलप होता है, जिससे वे क्लियर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम करते हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग से हेल्दी लिविंग और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रमोट होता है। इससे लोग अपनी नेबर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कल्चरल एसेप्ट्स। सोशल कल्चरल एसेप्ट्स क्या होता है? मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट आर हाईली इंफॉर्मेटिव
These increase the utility of given commodities for many people. These provide an opportunity to the consumer to compare the merits and demerits of various substitute products. But advertising should be reflection of social norms and give a clear picture of the market. Many people consider advertising to be wasteful and harmful for the customers and the society in many ways. It has a brainwashing influence over people with thousands of respective driving messages that will change their behavior over time. People tend to desire and buy products as they see in advertisement, even if they do not actually need or the afford them. मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट्स बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। इसमें लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझ सकते हैं। बहुत से लोग एडवर्टाइजिंग को वेस्टफुल और हार्मफुल समझते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग लोगों पर ब्रेन वॉशिंग इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इसमें हज़ारों रिपीटिव मैसेज आते हैं। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती है। Many spent of advertising past on the consumer through increased prices. Advertising को young people और children को एम किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट से लिक्विड सिगरेट्स, पान मसाला को प्रमोट किया जाता है। यंग पॉपुलेशन इससे टेम्प्ट होकर एडिक्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन जो होता है, efforts have been made to protect the public interest by regulating the content and the influence of advertising. Some examples are the ban of advertising tobacco and alcohol on television and smoking and drinking public places. जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि हमेशा जो टेलीविज़न वगैरह में हम लोग को तंबाकू के ऐड के बारे में बताया जाता है कि तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, तंबाकू खाने से ये डिसीज़ेज हो जाती हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन चाइल्डहुड, बच्चों पर भी इसका इफेक्ट्स पड़ता है। हैज़ अ रेगुलेशन हैज़ बीन इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक and this open places for the posting unauthorized of the obscene posters on public and private walls is a हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के लिए बड़े बड़े सिटीज़ में जाइए तो वहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग से लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और ये मतलब आती भी हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है? एनीवन हु consumers good is a consumer. The consumption patterns are changing fast and children today are very clear in their choice regarding food, clothing, cosmetics and accessories. Parents are permitting their children to take decision while shopping. It then become very important for children to check details before buying products. नेक्स्ट है राइज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस कोई व्यक्ति जो चीज़ों को कंज्यूम करता है वह कंज्यूमर है। आज के टाइम में कंजप्शन पैटर्न बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। चिल्ड्रन अपने फूड, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा के लिए बहुत क्लियर है। इट बेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू चेक डिटेल्स बिफोर बाइंग प्रोडक्ट्स। Rise of consumer awareness. There is a greater need for the consumer to be aware of the sale and purchase of goods, the health and security, except also government must ensure the safety of food items sold in the market. Consumers must have the tools to come up and protect their rights. नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होती है? फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है? राइट टू सेफ्टी। सेकेंड ड्यूटी होती है राइट टू बी इन्फॉर्म। थर्ड ड्यूटी होती है राइट टू चूज। फोर्थ ड्यूटी होती है राइट टू सीक रिडिशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड कंज्यूमर हैव द फॉलोइंग ड्यूटी। जब भी कंज्यूमर मतलब हम सब कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता है, और
और जब हम लोग किसी भी दुकान में जाते हैं तो हम कोई भी सामान यदि परचेज करते हैं या खरीदते हैं तो हमें उसका बिल लेना चाहिए, वारंटी कार्ड लेना चाहिए, चेक द IS मार्क। जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रिक बिल देखते हैं तो उसका IS मार्क चेक कर लेना चाहिए, उसमें IS मार्क है कि नहीं है, प्रेस है वगैरह जो लेते हैं। मेक अ कंप्लेंट फॉर ग्रीवनेस, कंज्यूमर्स मस्ट नो द एक्सरसाइज देयर राइट्स। कंज्यूमर्स को सभी इस राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स। कैसे मापते हैं कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए। लेजिस्लेशन ऑन कंज्यूमर राइट्स फर्स्ट है। सेकंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ है थर्ड तक है तो लेजिस्लेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 provides opportunities for the redressal of consumers disputes at the state and national level. With the help of this law, people can get their grievances solved in a speedy, simple and expensive manner. सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला सिस्टम था कंज्यूमर राइट्स, सेकेंड था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पुअर फ्रॉम अ प्राइस राइज एंड ब्लैक मार्केटिंग। द गवर्नमेंट सप्लाइज द एसेंशियल फूड आइटम्स to the poor through the ration of fair price ration of the fair price shops. Standardization products, this is done of assure the quality of products. The ISI stamps of goods is placed by the Bureau of Indian Standards. These goods can be trusted to be specific standards. Ag mark is meant of the agriculture products. जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, अनाज से संबंधित जितने भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं सब में एग मार्क लगा होना चाहिए। एग मार्क उसमें हो रहता है तो उससे समझ में आता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। एट द इंटरनेशनल लेवल, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लोकेटेड इन द जेनेवा सेट्स कॉमन स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक एडवर्टाइजिंग वाला टॉपिक यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप मुझे लगता है कि मैंने जो भी टॉपिक्स आपको समझाए वो टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा। और इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एडवर्टाइजिंग फ्रॉम अ मैसेज टू प्रोमोट अ प्रोडक्ट, अ सर्विस ऑन अ आइडिया। सेकेंड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग सर्विस एज अ पावरफुल tool in the marketing machinery. Third point, advertising use a variety of media such as newspaper, magazine, television, radio, internet, direct mail, hoarding। एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला आता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते हैं, मैगजीन में भी देखते हैं, टेलीविज़न में भी देखते हैं, रेडियो में, इंटरनेट में और डायरेक्ट मेल जो करते हैं उससे भी हमें एडवर्टाइजिंग के बारे में पता चलता है। फिर डिजिटल सिग्नल इन द न्यूअर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग। सेम एडवर्टाइजिंग मीडिया इज यूज्ड टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल अबाउट सोशल इशूज। एडवर्टाइजिंग शुड बी लीगल, डिसेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। There is a greater need for the consumer to be aware of the sale and the purchase of goods। आप लोग ये सब पॉइंट्स याद कर लीजिएगा और बुक में आपकी जो टर्म्स टू रिमेंबर दिया है उसकी एक एक चीज़ों को, डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। पहला दिया बिलबोर्ड्स के बारे में, दूसरा दिया ब्रांड एम्बेसडर, थर्ड है सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग, फोर्थ है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल सिग्नल्स और कियोस्क एंड सोशल एडवर्टाइजिंग। तो बच्चों आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा। आपको ये चैप्टर यहीं पर एंड हो रहा है, यहाँ पे इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बच्चों।